Assalamu alaikum and welcome back with another series of lectures on the subject environmental science. Environmental science is a good scoring subject in CSS if you prepare it well and yes of course if you present your question very well. Let us start with the introduction of environmental science. Environmental science is basically the study of three things. The first one is nature, the second one is human activities, and the third one is the connection between both of them, nature and human activities. What comes in nature? Air, water, soil, plants, animals, everything that surrounds us is included in nature. And now the human activities like pollution, deforestation, and urbanization that affect the nature are the human activities, and the connection between them, like how human activities affect nature and how nature affect us, is basically studied in environmental science. So there are some key topics around which the whole subject revolves. The first one is ecosystem and biodiversity. Next is pollution and waste management. Next is climate change and renewable energy. Next, conservation and sustainable development and living. Let us start our preparation with an easy chapter, the environmental pollution. Environmental pollution basically क्या होता है? The contamination of our nature with harmful substances, जिन्हें pollutants बोला जाता है, जो कि हमारे ecosystem पे, health पे और climate पे बहुत ही शदीद असरात, adverse effects cause करते हैं. Environmental pollution is the contamination of natural surroundings by harmful substances, the pollutants, causing adverse effects on ecosystem, health and climate. Okay, so now we have different types of pollutants. The first one are the primary and secondary. They are according to the form in which they persist after they release into the environment. Okay, तो primary pollutants कौन से होते हैं? जब हम इन्हें environment में जब इन्हें release किया जाता है, they persist in the form as they were added to the environment, like carbon monoxide, carbon dioxide और sulfur dioxide. जिस तरह इन्हें environment में जिस form में release किया जाता है, ये उसी form में persist करते हैं. The second one is secondary. Secondary कौन से होते हैं? जब primary pollutants आपस में react करते हैं तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं. जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे. जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मॉइस्चर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बना देंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. दे आर अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, कि ये नेचर में कितना और किस तरह एग्जिस्ट करते हैं. क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनका कंसनट्रेशन जो है वो थ्रेशहोल्ड लेवल से इंक्रीज़ कर जाता है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बहुत थ्रेशोल्ड लेवल से इंक्रीज़ कर जाएगा तो ये एक पोल्यूटेंट बन जाएगा. अब क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं एंड दे डू नॉट अकर इन नेचर, जैसे कि फंजाइसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स वगैरह. नेक्स्ट हैं द पोल्यूटेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल. तो उसमें बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आ जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. अब बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें के माइक्रोबियल एक्शन से डिग्रेड किया जा सकता है, जैसे कि सिवेज वगैरह, और जिनको माइक्रोबियल एक्शन से डिकम्पोज या डिग्रेड नहीं किया जा सकता उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बोला जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन या सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. तो इन्हें डिग्रेड नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं. नेक्स्ट कम द पोल्यूटेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन. उसमें नेचुरल होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक. नेचुरल जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक वो होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक का बेसिकली मतलब होता है मैन मेड, जो कि ह्यूमंस की वजह से हो या ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से जो पोल्यूटेंट्स बनते हैं उन्हें एंथ्रोपोजेनिक बोला जाता है. उसके बाद लास्ट में आते हैं द पोल्यूटेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट ऑफ मैटर. किस स्टेट ऑफ मैटर में वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर, उन्हें बोला जाता है. एक तो होते हैं इसमें गैशियस, एक होते हैं पार्टिकुलेट. गैशियस में आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जबकि पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में आता है स्मोक, फ्यूम्स, डस्ट, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसे कि SPM भी बोला जाता है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, द एयर पोल्यूशन. So what is air pollution? Air pollution is the presence of one or more contaminants like dust, mist, smoke or anything or any material in the air in such concentration which is harmful to man and his environment. तो हमारी एयर में किसी भी मटीरियल का या किसी भी कंटेमिनेंट का मौजूद होना इन सच कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, इसे एयर पोल्यूशन बोला जाता है. सो देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. The first one is the vehicle emissions.
the release of pollutants like carbon monoxide and oxides of nitrogen. The next cause is the industrial activities. The release or the exhaust from factories and industries और जो mining operations होते हैं, they also pollute our air. The next one is the agricultural activities. Agricultural activities जिसमें कि pesticides और fertilizers यूज़ किए जाते हैं, ये भी air pollution की एक वजह है. फिर deforestation, which reduces air purification and increases carbon dioxide level, as forests are considered the natural air purifiers. फिर आ जाता है वेस्ट बर्निंग. वेस्ट बर्निंग जो है वो रिलीज़ करती है टॉक्सिक फ्यूम्स और डाइऑक्सिन्स इन द एयर. द लास्ट वन आता है नेचुरल कॉजेज़. नेचुरल कॉजेज़ में आ जाते हैं वाइल्ड फायर्स और वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह. तो आगे मैंने बनाया हुआ है एक चार्ट जो कि आप भी अपने एग्ज़ाम्स में बना सकते हैं अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो. इसमें कुछ एयर पोल्यूटेंट्स हैं, उनके सोर्सेज हैं और उनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं. तो पोल्यूटेंट्स सबसे पहले आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ऑटोमोबाइल इमिशंस, ऑयल रिफाइनरीज और फॉसिल फ्यूल बर्निंग. जबकि इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स में आता है दे फॉर्म स्मोक एंड एसिड रेन विच कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स एंड लंग कैंसर. द नेक्स्ट पोल्यूटेंट इज़ ओजोन O3 and its sources are automobile emissions, chemical reaction of hydrocarbons and nitrogen oxides. और उसके health effects में आता है breathing difficulties, inflammation, asthma, eye irritation वगैरह. थर्ड पे है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सोर्सेज में आता है रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और क्लीनिंग सॉल्वेंट्स. जबकि इसके हेल्थ इफेक्ट्स में आता है दैट दे डिस्ट्रॉय स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, देयर बाय दे अलाउ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंट्री इनटू द ट्रोपोस्फेयर विच कैन कॉज स्किन कैंसर एंड मैनी स्किन प्रॉब्लम्स एज वेल. Here I have added a diagram just to remind you to please add a diagram in every question where possible and where needed. Next we're going to read about the measures to control air pollution. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे the environmental built-in self-cleaning processes, जिसमें सबसे पहले आता है dispersion. अब dispersion क्या होता है कि जितने भी contaminants या जो pollutants हैं एटमॉस्फेयर में उनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कि ये नहीं कहीं पे ज़्यादा हैं या कहीं पे कम, उनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इसको डिस्पर्शन बोला जाता है. फिर आता है ग्रेविटेशनल सेटनिंग. ग्रेविटेशनल सेटनिंग में क्या होता है, जितने भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से फॉल आउट कर जाते हैं फ्रॉम द एयर. जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में अगर कोई भी साइट को डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वहाँ पर एक डस्ट का क्लाउड सा बन जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डस्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाती है ड्यू टू ग्रेविटी. इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल सेटनिंग. फिर आता है फ्लोक्यूलेशन. फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ना इन द एयर, दे कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज क्लस्टर्स. जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मिल के आपस में लार्ज क्लस्टर्स बनाएंगे और फिर वो ग्रेविटी से नीचे आ जाएंगे. फिर आता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो गैशियस पोल्यूटेंट्स होते हैं लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दे आर डिजॉल्व्ड और केमिकली एब्जॉर्ब्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट और वाटर. सबसे पहले ये एब्जॉर्ब होंगे, फिर जब रेन होगी, जब बारिश होगी तो रेन वॉश आउट होगा. रेनफॉल के ज़रिए ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ये एयर से रिमूव हो जाएंगे और नीचे ज़मीन पे आ जाएंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी गिव यू अ टिप. Add related quotes to your questions. This can definitely get you good marks. So what this quote says here, according to World Health Organization, air pollution in Pakistan is nearly 10 times higher than level considered safe. अगर से गेट बैक टू आवर टॉपिक, पहले हमने पढ़े इन्वायरमेंटल बिल्ट इन प्रोसेसेस टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल कंट्रोल मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. उसमें सबसे पहले आता है बायोफ्यूल्स का यूज़ करें, ट्रीज़ प्लांट करें, एफॉरेस्टेशन करें, रीफॉरेस्टेशन करें, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ करें, एमिशन रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में और कंपनीज़ में इंस्टॉल करें, जिसमें कि फ़िल्टर्स आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आ जाता है और स्क्रबर्स आ जाता है. सोलर, टाइडल, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल पावर का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ कर दें. उन इंडस्ट्रीज़ को क्लोज़ कर दें जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, और पोल्यूशन फ्री फ्यूल्स अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ जो है वो बढ़ा दें. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अंटिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.